Hello, good morning, students. Myself, SJP, from Dr. AK Public School. Today, I am going to explain new chapter, that is very first chapter, resource and development. And the topic of today is resource planning. Resource planning means planning of resource. How resources should be planned. First, we will try to understand the chapter. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Means whenever we are making a planning, it means it is a strategy, it is a process which is accepted by large number of peoples, that resources should be used judiciously. Means we should use in proper manner, we should give judgment. Means we should be intelligently think about it, how to use resources. We must have some process, it should have been planned. So it has importance. Resources have importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. India is very enormous country and it has great diversity. Every type of people, many types of wild animals, many types of plant animals are available in the form of resources that is important for human need. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. In our country, there are many areas which have a rich source of resources and some areas they are deficient, they are deprived of all these resources. So there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources. कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं which is considered self-sufficient. वो आत्मनिर्भर हैं, means they can sufficiently, they have sufficient amount of resources available in that area. And there are some regions which have acute shortage of some vital resources. कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे रिसोर्सेज की. Those resources which are necessary, which are compulsory for us, they are not available there. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. हमारे जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं विच आर रिच इन मिनरल्स. यहाँ मिनरल्स की कमी नहीं है, हर तरह के मिनरल्स अवेलेबल है. वहाँ कोल डिपॉजिट्स है, मतलब कोल माइंस वहाँ पे है जहाँ से हम लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्स कैन बी डिग आउट. But Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. Arunachal Pradesh is a state where water resources are abundant. Water is available in large amount during rainfall, monsoon season. But there is lack of infrastructural development. There we cannot make huge building, multi-storied building. Means we very difficult problems are created for making infrastructure. Means to install or establish big factories or to install big playground, stadium and so many things. Means it has lacks, means there is shortage. So the state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. वहीं पे राजस्थान पूरी तरीके से इस तरह से है कि वहाँ सोलर एंड विंड एनर्जी बड़े आराम से लगाया जा सकता है. सोलर पैनल्स कैन बी established, installed, wind energy can be erected. Means windmills, they can be installed there and we can draw electricity from them. But lacks in water resources. वहीं पे यहाँ पानी की कमी है. We cannot make multi-purpose project here. So similarly the cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. अब जम्मू कश्मीर में लद्दाख, it is a glacier जो हमेशा बर्फ़ से लदा रहता है. It is relatively isolated from the rest of the
कंट्री पूरे देश से अलग थलग है, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता जल्दी, बहुत टाइम लगता है. सो इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. लद्दाख जो है वहाँ मतलब जो है इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. हमारी कंट्री में जो है कल्चरल हेरिटेज की कमी नहीं है, एकदम प्रचुर मात्रा में उपस्थित है कल्चरल हेरिटेज. बट डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ पानी की कमी है लद्दाख में. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, इनकी भी कमी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे हमें ज़रूरी मिनरल्स की कमी मिल जाती है. So this calls for balanced resource planning at national, state, regional and local levels. इसलिए ये हमारे लिए कॉल है, एक हमारे लिए जो है आह्वान है कि हमें रिसोर्सेज को बैलेंस करना होगा रिसोर्स प्लानिंग के ज़रिए, ताकि हमारे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पर रिसोर्सेज की कोई कमी ना रहे. Well children, you can prepare a list. It is an activity for every students. You can prepare a list of resources found in your state and also identify the resources that are important but deficit in your state. आप यूपी के रहने वाले हैं, आप जो है बड़े आराम से रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे यूपी में किन किन चीज़ों, कौन कौन से रिसोर्स की कमी है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. ओके, नाउ वी विल कम ऑन अनदर टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए. ओके, नाउ कम ऑन दिस वन. रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, एक जटिल प्रक्रिया है रिसोर्स प्लानिंग. इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. कौन कौन से. पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. वी शुड आइडेंटिफाई, हमें पहले तो इसकी लिस्ट बनानी चाहिए, एंड इन्वेंट्री, हमें उसकी मतलब जांच पड़ताल करके जो है रिसोर्सेज की हमें एक लिस्ट बना करके पूरी कंट्री का एक जगह पे रखना चाहिए. ये एक उसका एक मेथड है रिसोर्स प्लानिंग का. और इसमें क्या है, इसमें इसके लिए हमें सर्वेइंग करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, जगह जगह पे जाके मैप्स तैयार करने पड़ेंगे, मैपिंग करनी पड़ेगी, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लेने पड़ेंगे. वी शुड एस्टिमेट द रिसोर्सेज qualitative, according to quality we have to make its list, and according to quantity we will estimate how much resources are there, and on behalf of that we can measure the resources. Second step is evolving a planning structure endowed with appropriate technology. हमें एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है जो हमारे पास जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उसके साथ समर्थन में रहे. मतलब हमारा जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है वो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ मेल खाए. स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए हमारे पास स्किल्ड लोग होने चाहिए, जिनके पास स्किल है, बहुत ही दक्ष होने चाहिए, एफिशिएंट. इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, तभी हम रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान को क्रियान्वित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट. अब हमें जो है, जो भी हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स तैयार किए हैं वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए. यानी कि हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कुछ है और नेशनल डेवलपमेंट प्लान कुछ है, तब वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. सो इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमारी कंट्री में क्या है कि हमारे कंट्री ने बहुत ही ठोस प्रयास, कंसर्टेड एफर्ट्स, ठोस प्रयास, ठीक है, किया है ताकि रिसोर्स प्लानिंग का जो गोल है वो अचीव हो सके. और जब हमारा पहला फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था तभी से हमारी रिसोर्स प्लानिंग के जो गोल्स थे उसको अचीव करने की कोशिश की गई, जो कि हमारे आज़ादी के बाद लॉन्च हुआ था फर्स्ट 5-year प्लान.
Before going to the next parts, we can find out what resources are being developed in your surroundings by community or village panchayats, ward level communities with the help of community participation. So we can find out all these things when we go to block level, village panchayat area. Then we can find out such resources which are being developed in our surrounding. Community resources. In community resources, what comes? Primary health center, Anganwadi, and various other ASHA programs. They are launched by government scheme. Second thing, there should be a public place where marriage ceremony could take place. There should be a place where another activities can be done. There should be a burial ground, that is also a community resource. Then village panchayats. In village panchayats, what facilities are given, whether government schemes are coming to every people or not. In ward level, in cities, in every ward, is there facility of electricity, is there water supply done, is there drainage systems are proper or not. So we can make list very easily. Now we are coming to our topic, resource planning. In this one, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region. Means if any area, any region wants to develop, then one of the necessary condition, one of the important condition is अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हो तभी हमारा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, नहीं तो डेवलपमेंट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट. लेकिन केवल रिसोर्स अवेलेबल हो जाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? और जबकि हमारे पास जो है किसी जो भी है, इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जो हमारे क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं वो हमारे पास है ही नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, केवल रिसोर्स लेके क्या करेंगे. एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट. इससे क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा अगर हम टेक्नोलॉजी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So there are many regions in our country that are rich in resources. हमारे कंट्री में बहुत से एरिया ऐसे हैं जो रिसोर्सेज से पूरी तरह से भरपूर हैं, वहाँ बहुत रिसोर्स है. बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. लेकिन फिर भी वो पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है. ऑन द contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. और इसके विपरीत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत पुअर हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं. कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स? गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन. डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज, डच, पोर्तुगीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, all these countries, they had very poor resources. They were not rich in resources, but they were developed because they had technology and they had used education system. Secondly, India, it was rich. India, Sri Lanka, Bangladesh came at last, Burma, Afghanistan, they were rich in resources but they were backward. So in similar manner we can find out in present generation also. To find out this answer, we can discuss next part. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. हमारा जो colonization का इतिहास है इस बात का खुलासा करता है, इस सीक्रेट को रिवील करता है कि जो हमारी कंट्रीज़ में, कॉलोनीज़ में रिच रिसोर्सेज थे, ये सबसे बड़े अट्रैक्शन थे फॉरेन इन्वेडर्स के लिए. चाहे वो मुग़ल एम्परर्स रहे हों, चाहे वो ब्रिटिश लोग रहे हों, चाहे पोर्तुगीज़, चाहे डच रहे हों, वो हमेशा अट्रैक्ट हुए इंडिया के रिच रिसोर्सेज से. It was primarily the higher level of technology development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies.
मेनली क्या था, जो उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। जो हमारे कॉलोनियल कंट्रीज़ थे उनके पास एडवांस वेपन्स थे, उनके पास जो है एडवांस शिप्स थे, उनके पास एडवांस आइडियाज़ थे, उनके पास एडवांस पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से, इसकी मदद से इन्होंने इन कंट्रीज़ को अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और अपने यूज़ में लेना शुरू कर दिया। एंड देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज़, और कॉलोनीज़ में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। देयरफॉर resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, resources can contribute to development। रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में तभी योगदान दे सकते हैं, उनका जो है रोल तभी प्ले हो सकता है जब उसके साथ एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, टेक्नोलॉजी के तहत उसका इस्तेमाल हो, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, और उसके जो है उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो, मतलब एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है इसका जो है यूज़ हो। So India has experienced all this in different phases of colonization। इंडिया ने अपने कॉलोनाइजेशन के अलग अलग फेज पे, अलग अलग पड़ाव पर इस चीज़ को महसूस किया। Therefore in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources। इसलिए साधारण तरीके से और रिसोर्स डेवलपमेंट पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, केवल रिसोर्स उपलब्ध होने से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास हेल्दी, स्किल्ड, ट्रेंड एंड टैलेंटेड ह्यूमन्स हो, पीपल्स हो, वर्कर्स हो, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और लोगों के पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी हो। Now we will try to discuss conservation of resources. How resources can be conserved? Resources are vital for any developmental country. Very important. Resources are very important for every developed countries. We must have, resources. It is very important. But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। लेकिन गलत तरीके से बिना सोचे समझे अगर हम इसे खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज का, तो इसका परिणाम क्या होगा, ये किस तरफ ले जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। हमारे सोशियो इकोनॉमिक, हमारे समाज का और सामाजिक और आर्थिक और एनवायरमेंटल, और जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है जो प्रॉब्लम्स है, उसकी तरफ हमें ढकेलेगा। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए वी शुड कंजर्व रिसोर्स, वी शुड हैव कंजर्वेशन प्लान at various level। It is very important to have conservation resource plan। So this had been the main concern of leaders and thinkers in the past। For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words। गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। उनके वर्ड्स क्या थे, देयर इज़ एनफ फॉर एवरी डेज नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। हमारे इस धरती पर हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक लालची आदमी के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। उन्होंने ये जो ग्रीडी लोग थे, सेल्फिश लोग थे, लालची और जो है स्वार्थी लोग जो थे,
एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को का जो नेचर है, एक्सप्लॉइट करने वाला नेचर है, वो भी जो है हमारा ये एक बहुत ही इसका मूलभूत कारण था कि जो है क्या कहते हैं, हमारा रिसोर्स डिप्लीट हुआ और यही उसके जिम्मेदार थे पूरे विश्व स्तर पर। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो जो है इसके भी खिलाफ थे कि हम मास प्रोडक्शन करें। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति जो है अपना काम करे और एक प्रोडक्शन करे ताकि सबको काम मिले। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे क्योंकि उससे बेरोज़गारी बढ़ रही थी। सो वी कैन से दैट एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रोम में एक क्लब बना था, और वो जो क्लब था हमारा, रोम का जो क्लब था, रोम में जो क्लब बना था वो क्या था, इंटरनेशनल लेवल पर इस क्लब ने जो है रिसोर्स कंजर्वेशन पर वकालत किया। उसने अपनी बात रखी, उस पर बहस किया, और फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक तरीके से 1968 में ये जो है मतलब इस पे बहस शुरू हुआ। सब्सिक्वेंटली 1974, उसके ठीक देर बाद 1974 में गांधीयन philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। ठीक उसके बाद 1974 में गांधी की फिलॉसफी के आधार पर, गांधी की जो फिलॉसफी थी उसके आधार पर स्कूमैचर, ये एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, इन्होंने अपनी बुक में प्रेजेंट किया। उन्होंने एक बुक लिखा, its name was Small is Beautiful, and he put the idea of conservation of resources in this book, and on the basis of Gandhian philosophy he tried to explain his idea. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। 1987 में एक ब्रूटनलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, जिसने जो है रिसोर्स का जो कंट्रीब्यूशन था रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो उसके आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे मतलब सामने लाया गया, एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और इस बात की वकालत की, इस बात के लिए इन्होंने जो है अपने पक्ष को रखा कि यही रिसोर्स कंजर्वेशन का एक साधन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। और ये सारी बातें किस बुक में पब्लिश हुई? Our Common Future। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और बाकी आगे इनका लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था इस क्षेत्र में, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो फिर 1992 में जो आपने पहले समझा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में समिट हुई थी, वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया था। वेल स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम अनदर टॉपिक दैट इज लैंड रिसोर्सेज। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंड रिसोर्सेज हियर। दिस इज अ पाई चार्ट, land under important relief features. Here blue color, brick red color and yellow colors are shown. Blue color indicates plains and brick red color mountains and
yellow color plateau regions. So how land is distributed on earth, they are decided here on pie chart. Means 43% are plain, and especially in India, this is discussed about India. In India 43% piece of land is plain, and 30% piece of land is mountain, and 27% is plateau. So we can say that okay, we are coming on land resources. What is land resource? We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. हम इसी लैंड पे रहते हैं, एंड जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसी लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं, एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और इस लैंड का इस्तेमाल हम डिफरेंट वेज में करते हैं. दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. लैंड हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इट सपोर्ट्स नेचुरल vegetation, wild life and human life, economic activities. ये हमें किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है कि लैंड पर ही हमारे नेचुरल वेजिटेशंस, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, दे आर ग्रोन ऑन लैंड. वाइल्ड लाइफ, दे लिव ऑन दिस लैंड. ह्यूमन लाइफ, वी पीपल लिव ऑन दिस अर्थ. Economic activities are taken place on this earth land. Transport and communication systems is also performed on this piece of land. So land is a natural resource which is very important. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. जबकि लैंड जो है एक एसेट है, एंड इट इज़ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. इसका भी एक फिक्स मैग्नीट्यूड है लैंड का. मतलब कुछ ही पोर्शन में हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ ही पोर्शन में मकान बनवा सकते हैं, और कुछ पोर्शन में हम और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज़ विद केयरफुल प्लानिंग. इसलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत सावधानी से हमें प्लानिंग करके जो हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसे डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है. सो इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इंडिया में जो लैंड है वो अलग अलग रिलीफ फीचर्स में बसे हुए. वो रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं? माउंटेन, पहाड़ में बटा हुआ है, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन. हमारी कंट्री में इस पाई चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो 43% जो ब्लू कलर का है वो हमारा लैंड है. इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री. ये खेती बाड़ी के लिए और इंडस्ट्री के लिए हमें फैसिलिटी देता है. यहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ लगा के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. हमारा जो माउंटेन है वो हमारे टोटल सरफेस एरिया का 30% है. मीन्स ये जो ब्रिक रेड कलर है ये आपका 30% है. दिस इज़ माउंटेन. ये हमारे अर्थ सरफेस के 30% एरिया के बराबर है, स्पेशली इंडिया में. इट
एंड इट इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। इसी लैंड पर से हमारे पेरेनियल रिवर्स, दोज रिवर्स विच कंटेन वाटर थ्रू आउट ईयर लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, such rivers, they are perennial rivers, they comes from mountain, they flow on land. It provide facilities for tourism and ecological aspects. ये टूरिज्म की फैसिलिटी देता है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत तरीके के जो है वाइड स्पेसीज़ हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटो रीजन। प्लेटो रीजन आपको पता है, द पीस ऑफ लैंड विच इज़ नीदर माउंटेन नॉर प्लेन, दैट इज जस्ट मिडिल ऑफ दैट। इट इज़ 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री, द प्लेटो रीजन। इट इज़ नोन एज प्लेटो रीजन। इट इज़ मेड बाय येलो कलर। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर जो हमारा प्लेटो रीजन है, यहाँ पे बहुत रिच रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, हर तरह के मिनरल्स यहाँ अवेलेबल हैं। फॉसिल फ्यूल्स है यहाँ पे, वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट्स है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ आवर लैंड इज यूज्ड, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आवर लैंड यूज, हाउ लैंड शुड बी यूज्ड। वेल, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। बहुत सारे ये जो हमारे पर्पसेस हैं, इसको हमारा लैंड रिसोर्स हमारा यूज़ करता है। एंड उसके लिए इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पहला है फॉरेस्ट। हमारा लैंड फॉरेस्ट ने हमारे इस लैंड को यूज़ किया, हमारे इस लैंड पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे भी है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, वो 2 टाइप्स के हैं। पहला बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब अनफर्टाइल, जिसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है। एंड वेस्ट लैंड जैसे कब्रिस्तान हो गया, ऐसे चरागाह टाइप से जो वेस्ट है, कोई यूज़ नहीं उसका। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। कुछ लैंड ऐसे हैं जो जहाँ पे खाली जिस पे हम एग्रीकल्चरल यूजेज नहीं कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड है, सड़क बनाने के लिए है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तीसरा आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। कुछ और भी अनकल्टिवेटेड लैंड भी हैं जो कि हमारे फैलो लैंड को छोड़कर हैं। उनमें है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। हमारे इस पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे पास्चर लैंड भी है एंड ग्रेजिंग लैंड भी है जो कि परमानेंट, जहाँ पे बहुत तरह के जो है हमारे जो है पास्चर्स वहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं और वहाँ पे कैटल्स को फीड कराया जाता है। सेकंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स। बहुत सारे बाग हैं हमारे इस ज़मीन पे, लैंड पे, अलग अलग तरह के, अंगूर का बाग है, आम का बाग है, बहुत तरह के। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। ये नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। थर्ड है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। 5 सालों से वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की गई, ऐसे भी लैंड है। चौथा है फैलो लैंड्स। सो फैलो लैंड्स, फोर्थ नंबर, करंट so fourth is fallow lands. Current fallow means left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year। मतलब ऐसे हमारे पीस ऑफ लैंड है जो 1 या 1 से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए ऐसे परती छोड़ दिए गए हैं, जिसपे छोड़ दिया गया है कि बाद में उसमें खेती होगी। Second is other than current fallow, that is they left uncultivated for past 1 to 5 agricultural years। 1 से 5 सालों तक उस पर कल्टीवेशन का काम नहीं हुआ, इस तरीके से पड़े हुए हैं खाली। फिफ्थ है नेट सोन एरिया। हमारा जो एरिया जिस पे हम बोआई करते हैं, दैट इज नेट सोन एरिया।
area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. ऐसे एरियाज जो कि वन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया जो होता है हमारा, मतलब जो एरिया सोन मोर देन वंस, जिस एरिया में एक बार से ज़्यादा साल में कई बार हम जो है फसल उगाते हैं एक एग्रीकल्चरल ईयर में, प्लस नेट सोन एरिया को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया is the area sown more than once in an agricultural year plus net sown area. This is the definition of gross cropped area. Now we will discuss land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and gradation etc. मीन्स जो हमारा लैंड का यूज़ है इट इज़ डिटर्मिंड बोथ बाय फिज़िकल फैक्टर्स. फिज़िकल फैक्टर से डिटरमाइन होता है कि हमें उस लैंड को कैसे यूज़ करना है, जैसे उसकी टोपोग्राफी, मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, वहाँ ज़्यादा घनी आबादी है कि कम घनी आबादी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी वहाँ की कैसी है, वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड कल्चरल ट्रेडिशंस एट्सेट्रा, और वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ कौन सा ट्रेडिशन है, किस तरह का रीति रिवाज है. सो फॉर total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. So हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है, geographical area, the total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. हमारी कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. लैंड यूज़ डाटा, हमारा जो लैंड यूज़ हुआ उसका डाटा, उसका हमने जो लेखा जोखा किया, हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. अब वहाँ हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि नहीं, क्या ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया का ही डाटा हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, क्योंकि आसाम को छोड़ करके और कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डाटाज उपलब्ध नहीं है, उसका रिपोर्ट नहीं है. It has not been made fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. और जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है कुछ पोर्शन, वहाँ का भी कुछ डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना के अंडर में है. तो हियर इज़ द एक्टिविटी, ट्राई टू डू सम कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स. ये हमारे पास दो पाई चार्ट्स बने हुए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है. गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट वाई द नेट सोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960-61 टू 2008-9 वेरी मार्जिनली. अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कि जो है इनको पहले तो कंपेयर करें, फिर उसके बाद जो है हमें देखना है कि वाई द नेट सोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज्ड 1960 से 61 में और 2008 से 2009 में हमारा जो लैंड नेट सोन एरिया है एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो क्यों जो है चेंज हो गया, and it has been changed from this much very marginally.
So we can get here this portion means the net sown area and the land under forest. We will find out net sown area. Net sown area is shown with this green color. Net sown area, this green color bigger portion, and we have also got fallow other than current fallow, and in both cases there is marginal change, not so many changes, means these lands are same, it not increased, it could not increased. So the land under permanent pastures also decreased. Here we can say that land under permanent pasture, land under permanent pasture, that is with this color, it is also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? किस तरीके से हम इस पॉपुलेशन को, किस तरीके से हम ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को पास्चर लैंड अवेलेबल करा पाएँ, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है, उन्हें कैसे फीड करना है. मोस्ट ऑफ द अदर दैन करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर इक्वालिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई. और क्योंकि वहाँ पुअर क्वालिटी का जो है वो लैंड है, फैलो लैंड होने की वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन भी सही से नहीं हो पाता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है. हेंस दिस लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स. इसलिए 2 से 3 साल में इस लैंड पे 1 या 2 ही बार कल्टीवेशन किया जाता है. इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया NSA नेट सोन एरिया in India comes to about 54% of the total reporting area. तब हमारा नेट सोन एरिया बढ़ सकता है. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अब ये अलग अलग स्टेट में नेट सोन एरिया अलग अलग है. इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा. नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में 80% है एंड लेस दैन 10% इन अरुणाचल प्रदेश. जबकि अरुणाचल प्रदेश में नेट सोन एरिया केवल 10% है. 10% हिस्से पे खेती बाड़ी होती है, बीज उगाया जाता है. मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार सबके साथ यही हाल है, 10% ही है नेट सोन एरिया. सो कैन यू फाइंड आउट रीजन्स फॉर द लो proportion of net zone area in these states? Yes, why not? Their net zone area, because these places in these area, plain means it is hilly area, mountainous area, and there is not fertile soil. So, and its topography is very slopey. We cannot make field. We have to cut huge rocks, and sometimes landslide creates problem. That's why net zone area is only 10% here. Forest area in the country as far lower than the desired 33% of geographical area. और हमारी कंट्री का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी जो है 33% से कम है, जबकि इससे ज़्यादा होना चाहिए. एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी उससे ये पता चला था. इट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा. अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करते जाएंगे तो हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हो जाएगा. सो द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट. ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल जो है आज फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए. अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड. हमारे लैंड का एक पार्ट है जिसे हम वेस्ट लैंड भी कहते हैं. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. और ये ऐसा लैंड है जो कि अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आता है. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी. जो भी हमारा वेस्ट लैंड है वो पूरा रॉकी है, पूरा चट्टान है, पहाड़ है, एरिड पूरा शुष्क. एंड डेजर्ट एरिया पूरी तरह से डेजर्ट है, वहाँ पे रेगिस्तान है.
and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industry etc. और यहाँ पे क्या है कि ये जो लैंड है ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में लिया जाता है। यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिए, मकान बनवा दिए गए, उस पर से रोड पास हो गया, रेलवे लाइन बिछ गया, इंडस्ट्री लगा दी गई। So, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस यूज़ ऑफ लैंड, हम जो लैंड को लगातार यूज़ कर रहे हैं लंबे पीरियड से, बिना कोई मेज़र लिए, बिना किसी सावधानी के, बिना उसको कंजर्व किए हुए और बिना उसको मैनेज किए हुए, इसका परिणाम क्या हो रहा है, पूरा लैंड हमारा डिग्रेड होता चला जा रहा है, मतलब उसका स्तर गिरता जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी घट रही है। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। और इसके जवाब में, इसके बदले में ये एक गंभीर जो है समस्या है, एक गंभीर चुनौती है हमारे समाज के लिए और पर्यावरण के लिए।